वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। दिस सेशन इज रिलेटेड टू जो आईओसीएल का आपका ग्रुप टास्क, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यूज शेड्यूल है फ्रॉम 7th Jan 2026। सो दिस सेशन इज रिलेटेड टू दैट ओनली कि कैसे आप तैयारी करें, एंड इफ यू हैव any kind of question you can discuss that question with the mentors. So this session we have kept for that. अब ये सेक्शन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग रखेंगे, और वट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल यू कैन आस्क अस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन and we can proceed forward with me. Other mentors are also either joining or they will join soon. So let me tell you friends, first this particular GD, GT और PI is critically important. मैं जब इंटरेक्शन करता हूं ना, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जिनका इंटरेक्शन मैं अभी डाल भी रहे हैं हम लोग, आप उसको ध्यान से सुनना। उन सारे स्टूडेंट्स का एक एडवाइस है आप लोगों के लिए। वो एडवाइस ये है कि आप इंटरव्यूज को सीरियसली लेना, इंटरव्यूज को ढंग से देना। बहुत दुख होता है जब आपका इंटरव्यू कुछ मार्क्स से यू मिस द ट्रेन बाय 1 mark, 2 mark, 3 marks, और you miss it and then you have to wait for maybe years together or for always, because that may happen. इसलिए take everything seriously, whatever comes take it seriously. Number 2, do not put anything negative in your mind. अपने दिमाग में कोई नेगेटिव चीज लेके मत चलना आगे। नेगेटिव लेके चलोगे फ्रेंड्स, आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने तो साहब कभी जीडी नहीं दिया, मैंने कभी जीटी नहीं दिया, मैंने कभी इंटरव्यू नहीं दिया, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, मेरा तो 7 तारीख को आ गया, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये सेल्फ डिफीटिंग थिंकिंग होती है। अपने आप को डिफीट कर लेते हो आप ये बोल के, वो नहीं करना। आपने पॉजिटिव होके कर रहा कि मैं निकाल लूंगा, मैं कर लूंगा, और अगर और कोई कर सकता है मैं भी कर सकता हूं, बस मेरे को तरीका पता लग जाए करना कैसे है तो मैं निकाल लूंगा। आपको इस तरीके से आगे प्रोसीड करना है। Yes, so I am keeping both in Hindi and English so that everyone understands. So don't say negative to yourself. Positive होके चलो, be positive, understand the process, and that is how you are to proceed forward for the preparation. Now, I strongly believe, friends, कि एक week, 1 week is more than sufficient. 1 week, if you strategize properly, you will prevent elimination. All of you know that GD and GT marks are only 5 marks out of 100. Only 5 marks. So GD, GT, we are not preparing to get marks. We are preparing GD, GT to prevent elimination. Because if you do not get 2 marks in GD, GT, you will be eliminated. Even if your rank in CBT is number 1. So you should prepare GD, GT in that way. And the best part is, इतनी तैयारी करने के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, आपको प्रैक्टिस चाहिए। योर पीडीए के मेंटर्स के साथ 20 जीडी जीटी करो, 20, कम से कम 20 करो, और जब आप इतना कर लेंगे, मान के चलो आप एलिमिनेट नहीं होंगे, आप पास हो जाएंगे। उसी तरीके से इंटरव्यू दो, इंटरव्यू में 10 नंबर है, उसमें मार्क्स लेने की भी ट्राई करना, और बाकी आप ऐसे आगे प्रिपरेशन अपनी करते चले जाओ। दिस इज हाउ यू पीपल आर टू प्रिपेयर। Lot of content will be provided to you. Lot of content means sufficient content which you will be using for preparation and all for each branch. Now in IOCL, group task and case studies are branch wise. Chemical engineer will get different, electrical engineer को अलग case study, अलग group task, ऐसे थोड़ा थोड़ा difference आएगा उसमें। And certain things are common. One document which you are getting, employment form, please take that seriously. There is no time till 1 you have to send employment form to IOCL. Don't show hurry. जल्दी में employment form मत भर देना, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। वो employment form से क्वेश्चन पूछते हैं, they are going to ask you question from your employment form. So don't fill it in hurry. Discuss with the mentors and then only you fill the employment form. That is important. Your hobbies and everything which you want to fill there, you should ask the mentor and prepare accordingly, because that is the document for interview, and that is a document which you should prepare, and you can pull the interview in your direction using that document. And then obviously technical, because it is a junior engineer level, so technical questions also they will ask you. There are a couple of subjects of each branch which are important, and if because if you have not done any job, you don't have any job experience, then technical subjects they will ask you. And if you are in the job, or if you are doing job, or if you have done previously job,
then some question related to job can also be asked. So that is how you have to prepare. Now, yeah, biodata form and employment form are the same thing. So different terms are used in different public sector. So I'm using those terms, employment form and biodata form. Now, better will be, friends, that I make this session more interactive session. You ask me a question and the answer of that question will be relevant for everyone. आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो आप मेरे से पूछे या मेरे मेंबर से या मेंटर से पूछें. We have mentor Lalita ma'am from chemical engineering, Dushyant from electrical background, and then we have from mechanical background also. So HR team is there. Mentors are also there, so you can ask the questions and we can respond to that. Yeah, please go ahead now. Any question we can start. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर. हाँ जी, मैं शुभम go ahead. राठौर. हाँ जी, मैं सब तुम शुभम बताओ. बोल रहा हूँ. हाँ मैं सर हाँ. मैं बायोडाटा से फॉर्म पूछना चाहता हूँ सर. मैंने बायोडाटा फॉर्म अभी तक भरा नहीं है, तो उसमें सर जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट मैंने जैसे समर ट्रेनिंग में और जॉब में मैंने कोई प्रोजेक्ट करा नहीं है, तो मैं उससे रिलेटेड कैसे भरूं? देखिए, अब मैं इसके ऊपर एक बात बोलूंगा, आपको ध्यान से सुनना. इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट, अगर आप लोगों ने नहीं सर किया है, अगर आपने लोगों ने नहीं किया है चीजें, तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट कॉलेज का, अपने सीन, अपने फ्रेंड का, किसी का छोटा मोटा प्रोजेक्ट, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं तो आप थोड़ा सामान लिख सकते हैं, अगर कंफर्टेबल है तो. अदरवाइज मत लिखिए. बेस्ट ये है कि आपका प्रोजेक्ट हो. अगर आपका प्रोजेक्ट नहीं है लेकिन आपने किसी और के साथ डिस्कस किया है और आप कॉन्फिडेंट हैं उसमें, तो आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मेंशन कर सकते हैं, ड्यूरेशन रिड्यूस करके. लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट में कॉन्फिडेंट नहीं है, देन डू नॉट राइट इट. खाली छोड़ तो दो, सर लेकिन मेंशन मत करना. तो सर Sir, प्रोजेक्ट की जगह सर I have same प्रोजेक्ट की problem जगह in मैं this क्या भरूं topic. सर? वन बाय सर वन, मैं फ्रेंड्स. प्रोजेक्ट सर मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो जो सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट है, तो उसकी जगह मैं क्या फिल करूं? नहीं तो अगर कुछ नहीं है आपके पास, देखो, या तो इंटर्नशिप हो सकता है, या प्रोजेक्ट हो सकता है, या कोई ऐसा स्पेशल आपका इवेंट जो टेक्निकल इवेंट हो, जो कॉलेज में आपने किया हो. सर्टिफिकेशन कोर्स होते हैं ऐसे छोटे मोटे. आप अपने बारे में सारा बताना कि साहब कॉलेज में आपने किया क्या क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा. मैंने ये भी कई बार ना स्टूडेंट ने किया होता है. अब हमें पता नहीं है कि आपने क्या क्या किया है. जो आपने किया उसको फिट किया जा सकता है वहां पे. तो जब आप बताएंगे साहब मैंने ये किया डिटेल में सीरत मैम को कि मैडम सर मैंने मैंने ये किया, मैंने ये, तो आप बता समर सकते हो सर. ट्रेनिंग जैसे समर जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्रियल. समर हाँ, डाल सकते हैं समर उसको. ट्रेनिंग तो करी है सर. समर ट्रेनिंग तो मैंने करी है और मैं जॉब भी इस टाइम कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन समर ट्रेनिंग में मैंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया है. अरे यार शुभम, एक बात समझो, जॉब कर रहे हो, जॉब के अंदर कई प्रोजेक्ट कर लिए होंगे आपने, राइट, छोटे मोटे. हाँ हाँ. कॉलेज का प्रोजेक्ट क्या होता है? छोटा सा प्रोजेक्ट होता है. मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब कर रहा हूँ भाई, यस मैम. एक छोटी सी वेल्डिंग मशीन के ऊपर अगर मैं 4 दिन काम कर रहा हूँ, वो बीटेक का, एमटेक का, वो तुम्हारा डिप्लोमा का प्रोजेक्ट बन जाता है. तो जो इंडिविजुअल जॉब कर रहा है उसके पास तो प्रोजेक्ट की कमी नहीं होती. आप मेरी हाँ बात सर. समझ रहे हो? हाँ सर, 3 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए. हाँ, तो 3 साल में ऐसा तो है नहीं कि तुमने छोटा मोटा काम नहीं किया होगा, छोटा मोटा जिसको प्रोजेक्ट की तरीके से दिखाया जा सके. सोच की बात है, पेज को काला करने वाली बात है. और ऐसी चीज वहां पे लिखो जिसमें तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि मेरे को अगर पूछेगा तो मैं आंसर कर दूंगा. अब अगर जॉब आपने की है, आप समझ रहे हो ना कि जो जॉब करता है इंडिविजुअल, वो कॉलेज के बच्चे से तो काफी अच्छा काम करता है ना वहां पे इंडस्ट्री में. हाँ सर. उससे कई कई चीज निकल आएगी. आप बोल दो साहब ये प्रोजेक्ट मैंने किया. और सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्या एरिया ऑफ इंटरेस्ट में देखो क्या होता है, वो आपके टेक्निकल भी हो सकता है, वो आपका नॉन एकेडमिक भी हो सकता है इंटरेस्ट. तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब आपका पर्सनल प्रोफेशनल दोनों होता है. अच्छा. मैंने थोड़ा जल्दी में अपना फॉर्म या फिलअप कर दिया था. या 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 हेलो. हाँ सर, सर प्लीज तो गो सर अहेड. एरिया सर में सर एक चीज और कौन? पूछना था सर. जैसे सर मैंने आईओसीएल से अप्रेंटिसशिप पे किया है 1 ईयर का, तो वो हम डाल सकते हैं सर समर ट्रेनिंग के ऑप्शन में? आपको डालना चाहिए उसको. अप्रेंटिसशिप बेसिकली, अगर अप्रेंटिसशिप का अलग से नहीं बना हुआ है, कई जगह हाँ बोलता अलग है से. एडिशनल तो नहीं इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वहां पे लिखो उसको अप्रेंटिसशिप को. तो सर एडिशनल कहीं ऐसे दिया नहीं हुआ है कि अप्रेंटिसशिप डालने के लिए, कहीं तो ऑप्शन आया ही नहीं. और मैंने किया नहीं, आईओसीएल से. मैं उसको देख लूंगा, क्योंकि नॉर्मली वो बोलता है कि अगर तुम इन एडिशन टू दिस इफ यू वांट टू टेल समथिंग तो बता दो. मैं उसको चेक कर लेता हूँ एक बार.
बट एक बात आप समझिए, आपका पूरा इंटरव्यू जो है अप्रेंटिसशिप के ऊपर चल सकता है अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है तो, क्योंकि वो भी अप्रेंटिसशिप सर से मैंने बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। IOCL से ही मैंने किया अप्रेंटिसशिप बहुत सही 1 है। ईयर का। तो अगर 1 ईयर। एडिशनल सीरत मैम से पूछना कि मैडम हाँ एडिशनल कुछ चीज अगर लगानी है तो कहाँ पे प्रोविजन है, अगर नहीं है तो उसी में डाल दीजिए, कोई बात नहीं, डाला जा सकता है उसको। सर तो फिर अप्रेंटिस सर में हम एरिया लोग ऑफ इंटरेस्ट में वर्क फिर क्या आ एक्सपीरियंस जाएगा में भी तो सर? लिख सकते हैं। एक एक करके फ्रेंड्स आप पूछना प्लीज। हाँ, पहले मनीष अपना क्वेश्चन पूरा कर लो आप। सर जैसे मैंने अप्रेंटिसशिप किया है तो वो यदि समर ट्रेनिंग वाला कॉलम में यदि फिल करेंगे तो फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट में भी अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड ही कुछ। अरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट समझो क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है एकेडमिक इंटरेस्ट, डोमेन इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। जैसे मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेट अस से एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मैकाट्रॉनिक्स। अप्रेंटिसशिप जो है वो इंटर्नशिप की रिप्लेसमेंट है, प्रोजेक्ट की रिप्लेसमेंट है, जॉब की रिप्लेसमेंट है। वो इंटरेस्ट की रिप्लेसमेंट, सब्जेक्ट की इंटरेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है वो। आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं वो कुछ और हो सकते हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट प्रोफेशनल इंटरेस्ट। एज केमिकल इंजीनियर आपका इंटरेस्ट रिफाइनिंग में हो सकता है, वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब एज इंजीनियर तुम्हें कौन सा टेक्निकल डोमेन में इंटरेस्ट है, या पर्सनल भी हो सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट मेरा इसमें है, तो वो चीज होती है एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अप्रेंटिसशिप से कोई लेना देना नहीं है उसका। सब सर फिर बीटेक कर चुके हैं, सर हाँ जो जी। बीटेक सर कर रहे हैं वो कैसे छुपाएंगे कि अभी वो बीटेक नहीं कर रहे हैं? देखो, अगर आपको आगे जाना है, इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा तुम्हें कि जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पीएसयू में अगर जॉब कर रहे हो तो एनओसी नहीं मिलता। अब आप पीएसयू में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, नेवेली लिग्नाइट में जॉब कर रहे हो, आईयूसीएल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, नेवेली तुम्हें देगा नहीं एनओसी, तो लड़के तो जाते हैं। अब आप मेरे से पूछोगे सर सही है गलत है, तो मैं उसका रिस्पॉन्स तो नहीं दूंगा यहाँ ऑब्वियसली एज अ मेंटर, बट लोग करते हैं ऐसा। अभी आप डिस्कस सर कीजिएगा मेरे से बाद में। ऐसे बहुत से बच्चे, मेरे नॉलेज के हिसाब से बहुत सा बच्चा है जो बीटेक है। Sir, I have सर a question. यदि हम सर बैचलर ऑफ आर्ट्स में जैसे बीए किए हैं यदि डिप्लोमा की बात तो वो दिखा सकते हैं सर? आपको क्यों दिखाना है बैचलर उसको बीए? अब आपको तभी दिखाना है अगर आप उसको उस डायरेक्शन में ले जाना चाहें। देखिए वही चीज रिवील कीजिए, वही चीज रिवील कीजिए जिसका इंटरव्यू में तुम्हें बेनिफिट हो, जिसका तुम्हें इंटरव्यू में बेनिफिट हो वही चीज रिवील करो, और पर्सनल लेवल पे डिस्कस करके करना। सर मेरे को बीए रिवील करनी चाहिए कि नहीं, मैं आपके साथ 1-to-1 सेशन करूंगा, अब बताऊंगा। सर मैं बीटेक कर रहा हूं, कैसे छुपाऊं, सबके सामने नहीं बताऊंगा, सबके सामने डिस्कशन नहीं करेंगे। छुपाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे, मैं अच्छा आपके सर साथ बताऊंगा। अच्छा सर करंटली सर अभी पोस्ट ऑफिस विभाग में हम अभी जीडीएस पे कार्यरत हैं। पोस्ट जो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आता है सर, तो ये चीज हमको दिखाना चाहिए अभी फिलहाल बायोडाटा में। देखिए जॉब कोई भी कर रहे हो आप, वो दिखाने चाहिए। तो जॉब सर चाहे आप हमको नॉन टेक्निकल कर रहे हो, चाहे सर आप नॉन जैसे भी टेक्निकल है जॉब कर रहे हो। हाँ हाँ, सर तो जॉब तो है, पोस्ट ऑफिस पैसा तो कमा रहे हो। भाई मेरे को ये पैसा है कि तुम खाली नहीं बैठ रहे हो, तुम पैसा कमाओ, सैलरी करो, अपने आप को सस्टेन करो, मैं ये चाहता हूँ। अच्छी तो बात है। सर ये डिपार्टमेंट ना सर अभी तो हम लोग फिलहाल जीडीएस अभी एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल में आते हैं, तो ये एनओसी हम लोग को प्रोड्यूस नहीं करता है। यदि हम अदर कोई एग्जाम के लिए बैठते हैं तो लास्ट में यदि हो चलिए सकता है यदि हमको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, मनीष बाद में डिस्कस करो मेरे साथ 1-to-1। आप में से सर कई लोगों को मैं बोलूंगा, सुनो मेरी बात, कई लोगों को मैं बोलूंगा मेरे से 1-to-1 डिस्कस करना, इसलिए कि सबके सामने वो बातें डिस्कस नहीं की जा सकती। जो कॉमन क्वेश्चन है वो सबके मैं आंसर कर रहा हूँ। बाकी आप में से कोई भी मेरे साथ 1-to-1 डिस्कशन कर सकता है, सर फोन पे बात 1-to-1 कर सकता है। डिस्कशन कैसे होगा? फोन पे कैसे होगा, सर फोन पे होगा, मेरे साथ फोन पे आप कर सकते हैं, आप मेरे को कॉल करके, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं। सर Sir, कब Miss chemical नंबर तो engineering नहीं है सर? मैं अपना फोन नंबर अभी शेयर कर दूंगा आपको यहाँ पे, डोंट वरी। अच्छा Sir, मैं chemical जिसको जिसको मैं 1-to-1 बोल रहा हूँ, जिसको मैं 1-to-1 बोल रहा हूँ, मेरे को 1-to-1 डिस्कस करना, वो मेरे को कॉल कर लेगा, क्योंकि सबके सामने वो बात नहीं बतानी है, सर डिस्कस। हाँ सर मैंने समर ट्रेनिंग नहीं किया है चलिए, सर। विशाल विकास कुमार। हाँ, सर बोल रहा हूँ कि मैंने समर ट्रेनिंग नहीं किया है। देयर आर टू विकास फ्रेंड्स, देयर आर टू विकास, आई एम सेइंग विकास कुमार एंड देन विकास, जस्ट वेट। हाँ इसको पूछ रहे हाँ हैं सर तुमसे दिखा दो ठीक है।
वैल्यूएबल मिलेगा। सर मैंने समर ट्रेनिंग नहीं किया है सर, लेकिन कॉलेज में एक मिनी प्रोजेक्ट किया था कंप्रेसर का। सर इसको कैसे उसमें लिखे सर? फिर अच्छा हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जिनका जो कैंडिडेट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं वो अपने आप को म्यूट रखें प्लीज, बिकॉज देयर इज अ डिस्टर्बेंस कमिंग। वो कैसे आपको करना है, तो अगर आपने कॉलेज में ट्रेनिंग, जहां मैंने बताया ना आपको, ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर, प्रोजेक्ट कॉलेज के अंदर, कोई एडिशनल कोर्स अगर आपने किया तो उसको डाला जा सकता है समर ट्रेनिंग की सर जगह। मिनी प्रोजेक्ट किया था सर, तो कोई डाला जा प्रैक्टिकल सकता है नॉलेज ना उसको, समझने के लिए। बिल्कुल। पर सर प्रोजेक्ट, मैंने समर ट्रेनिंग नहीं किया है सर। कोई बात नहीं। तो अगर प्रोजेक्ट का कॉलम अलग से नहीं है तो ट्रेनिंग की जगह उसको डाला जा सकता है, क्योंकि कई कॉलेजेस में प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप की जगह, ट्रेनिंग की जगह प्रोजेक्ट करवाया जाता है, होता है कॉलेज के अंदर ये प्रोजेक्ट। सर 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 क्या वन मैं मोर डाउट सर, इसी से रिलेटेड की है सर मेरी जो समर से ट्रेनिंग है सर, उसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह तो बनाया था और प्रेजेंटेशन सब चीज, लेकिन है ना वहाँ समर ट्रेनिंग के लिए हम गए नहीं थे। देखिए, किसी को पता नहीं कि आप गए थे कि नहीं गए थे। प्रोजेक्ट कॉलेज के अंदर किया है या प्रोजेक्ट अपने इंडस्ट्री के अंदर बैठ के किया, वो किसी को पता नहीं होता। अच्छा सर, लेकिन मैंने है ना सर जो उससे रिलेटेड था, इफको ओनला के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट मतलब तैयार करा था, तो उसमें मैंने डिस्टिलेशन वगैरह और उससे रिलेटेड प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, मतलब ये सब चीज लिख के उस पे फॉर्म भर दिया मैंने सर। 7 तारीख को फॉर्म डाल मेरा दिया? है। जी। तो 7 को किसने बोला था आपको अभी भर दो? 7 तो बड़ी दूर है अभी। एक्चुअली में मुझे पता नहीं था, तो जल्दबाजी में फर्स्ट टाइम था, तो इस चक्कर में अब भर एक दिया। काम करना, जो भर दिया, पहली बात तो भरना मत आप लोग। 3 दिन तक मत भरना, जब तक 3 दिन नहीं छूट जाते। जैसे 7 को है तो जिसका 4 तारीख आ गई उसको भरना चाहिए मैक्सिमम, तब 5 तक भी भरोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर पहली बात मेरा तो तो भरना मत, पहली बात नहीं तो सर सर, भरना मत। उसमें लास्ट 31 लिखा डेट है। 31 दे रखा है आपको टाइम? 31। सर जी जी लास्ट जी, डेट 31 को लास्ट बायोडाटा है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 है। 31 है सर। 31 है, यस सर। ठीक है, ठीक 31 है। दिसंबर है लास्ट डेट बायोडाटा फॉर्म हाँ, तो अगर सबमिट करने की। 31 है, 31 है तो 30 तक आप भरो। तो 31 तक आप भर दो। लेकिन उस टाइम तक बहुत चीजें आपको पता लगती हैं, बहुत चीजें आप हाँ तैयारी करते हो, तो तो अकॉर्डिंगली सर, होता है, तो जल्दी मत भरो। सर सर जैसे सर मेरा तो 28 फेल हो गया, तक अब मैंने है ना उस पे इसको ऑनला के ऊपर थोड़ा और पढ़ाई रिसर्च वगैरह करके तभी जाऊँ ना देन। ऐसा करना कि क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो, मैं 2 पॉइंट पे आ रहा हूँ। पहले तो आप लास्ट में भरना जब डेट आ जाएगी। दूसरा, जिन्होंने भर दिया अब उसको चेंज तो कर नहीं सकते, और उन्होंने वो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाए कि क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछने हैं आपसे, क्या क्या पता करेंगे, वो आपको आइडिया हो। तो वो आप एक बार मेंटर से जब डिस्कस करेंगे कि ये लिखा है, ये अब इसमें से मेरे से क्वेश्चन पूछो। होता क्या है, आपके बायोडाटा के बेस पे कितनी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो अगर आपको सारे पता हों तो आपको डरने वाली बात नहीं, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन वहां पे आ जाते हैं। जैसे अगर किसी का जो नाम है वो इंटरेस्टिंग लगा उनको, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी की डेट ऑफ बर्थ ऐसी है कि जो हिस्टोरिकल है, उसमें से क्वेश्चन पूछ लेगा। इंटरेस्टिंग लगा आपका हॉबी, उसमें से पूछ लेगा। तो आपका जब बायोडाटा आप मेंटर्स को दिखाओगे तो वो आपको 10 20 40 50 क्वेश्चन ऐसे बता देंगे जो वहां से पूछे जा सकते हैं आपसे। तो फिर वो आपको तैयार करने हैं, और वहां पे एक्चुअल इंटरव्यू में वही क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो इवेंचुअली ये है कि ये रहा मेरा बायोडाटा। इस बायोडाटा के बेस में मेरे को वो 50 क्वेश्चन बता दो जो मेरे से पूछे जा सकते हैं। अगर वो 50 क्वेश्चन आप तैयार कर लें ढंग से, इस क्वेश्चन का आंसर ये ऐसे ऐसे मैंने देना है, प्रैक्टिस कर लें उसका, तो आप कंफर्टेबल फील करेंगे। एक और मेरे पॉइंट। हाँ जी। मेरा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, मतलब पूरे केमिकल ब्रांच से हूँ, तो वो डिस्टिलेशन टावर था, तो मैंने उसमें वही लिख दिया, इफको प्लांट में डिस्टिलेशन टावर का क्या रोल है और उसकी सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकती हैं। अब उसी से मैं सोच रहा हूँ, अब तो फॉर्म भर गया, तो उसी से रिलेटेड मैं अपने आप को प्रिपेयर करके चला जाऊंगा। वो तो एक पार्ट है ही, वो तो करना ही है तुम्हें तैयार। लेकिन ऐसा ना समझें कि मैंने वो लिखा है तो वहीं से आएगा, बाकी भी तैयार करके जाना आप। वहां वो तो तैयार करना ही पड़ेगा जो लिख दिया। जी सर। सर मेरा सर मैंने सर प्राइवेट सेक्टर हेलो में सर। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो उसमें एनओसी चाहिए क्या सर? नहीं, प्राइवेट में एनओसी इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके सर, थैंक यू सर सर। सर 5 साल का गैप सर, उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा सर? मैं उसको ऐसे जस्टिफाई करना है जिसका भी 3 साल से ज्यादा गैप है, 3 या 3 साल से ज्यादा का गैप।
जिनका 2 साल तक गैप है वो बोल सकते हैं कि सर आई वॉज प्रिपेयरिंग, 2 years गैप इज नॉट अ गैप, सो आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड ऑल। बट जिसका 3 या मोर देन 3 years गैप है, प्लीज डिस्कस विद मी। आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट योर बैकग्राउंड। वट आई वॉन्ट टू नो, आपकी फैमिली क्या करती है, आप क्या करते करते रहे, क्या आपने अपने रिसोर्स कैसे जनरेट किए, कहाँ रह के तैयारी की, क्या हम ये बता सकते हैं कि आप छोटा मोटा कोई काम किया करते थे, आप रिसोर्स जनरेट करते थे, आपने जॉब के लिए ट्राई किया, आपने छोटी सी जॉब करने का ट्राई भी किया। तो ये सारे मैं आपसे आपकी इंफॉर्मेशन लूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं आपको एक आंसर ऑडियो फ्रेम करूंगा कि ये वहां पे अब आप प्रैक्टिस करो, ये आपको बोलनी है। देखो, आपको झूठ नहीं बोलना है, ब्लफ नहीं करना है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिना झूठ किए बोली जा सकती हैं। जैसे ऐसे बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कुछ ना कुछ काम करते हैं, जो ऑनलाइन थोड़ा बहुत पढ़ा भी लेते हैं, या अदरवाइज कुछ कंटेंट का काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कमाते भी हैं। उन्होंने 4 महीने 5 महीने काम किया, अब गैप है 3 साल का, तो क्या 4-5 महीने के एक्सपीरियंस के बेस पे जब सर्टिफिकेट भी नहीं है और वो आपसे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगते, अगर आप, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि साहब मैंने 3 साल अगर जॉब शो कर दी तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो है नहीं, नहीं मांगते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे आप किसी को कुछ बता नहीं रहे हो, इंटरव्यू में वो सर्टिफिकेट कभी मांगता नहीं है। सो यू डू नॉट नीड टू शो द सर्टिफिकेट ऑफ जॉब एक्सपीरियंस, दे विल ओनली आस्क यू क्वेश्चन। सो वी नीड टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट इट शुड नॉट लुक लाइक टोटल अ लाई, एंड एट द सेम टाइम आप कॉन्फिडेंट भी रहे। तो मेरे को जानना पड़ेगा आपसे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, फिर मैं आपको बोलूंगा ये इस डायरेक्शन में सोचना स्टार्ट करो और प्रैक्टिस करो बोलने की। सर कि किस जितना आप सर प्रैक्टिस डेटा करोगे, डेटा वेरिफिकेशन में जॉब का ज्वाइनिंग लेटर या उसका रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट ऐसा मेंशन किया है सर उसमें? अगर आप लिखोगे तब है ना वो। मान लो आपने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पे लिख दिया, अगर लिखा ही नहीं तो क्या देखेगा वो? हाँ सर, जो लिखे हैं तो उनको प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसा तो मेंशन किया है। लिखिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ ना लिखो, आप अगर नहीं किए जॉब तो मत लिखो, लेकिन इंटरव्यू के अंदर जब वो गैप पूछेगा तो कुछ ना कुछ बताया जा सकता है कि साहब मैं जॉब कर रहा था, तो लिखी क्यों नहीं है इसमें, साहब सर्टिफिकेट नहीं था, वो सर होते हैं यस सर। आंसर। ये सीने 2022 में पास आउट है, देन उसका 25 में एग्जाम ये वाला निकला है, तो 3 साल का गैप हो गया। देन वो 3 साल वो एसएससी के फील्ड में चला गया, सपोज कर लीजिए, देन या नॉन टेक से हट के मतलब नॉन टेक पार्ट में चला गया, टेक्निकल छोड़ के। तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि मतलब 3 साल तक क्या कर रहा था, और साथ में वो टीचर भी था, ट्यूशन भी पढ़ा रहा था, होम ट्यूशन। बस पढ़ा रहा था, टीच कर रहा था, एसएससी से कोई लेना देना नहीं है उसको इंटरव्यू में। मैं एसएससी कर रहा था, क्या कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है, ये बताओ काम क्या कर रहे थे। सब ट्यूटर पढ़ा था रहा सर। था, हाँ बस तो ठीक है, पढ़ा रहा था, काम ही होता है वो। क्यों पढ़ा रहे थे? क्योंकि सर मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब है, पब्लिक सेक्टर के लिए मैं तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पढ़ भी लेता था, कमा भी लेता था, गुजारा भी चला लेता था, और साथ में अपना तैयारी भी करता रहा मैं। ऐसे सर काम यहाँ से होता है। क्वेश्चन सर क्या राइज मैंने हो सकता है? वन बाय वन फ्रेंड्स, हाँ। सर यहाँ से सर क्वेश्चन क्या राइज हो सकता है कि पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन कई आते हैं इससे विकास, बहुत से क्वेश्चन आते हैं। वो 1 to 1 क्वेश्चन जब आपका एक्चुअली क्या होता है कि कॉमन नहीं है वो सारा, जब हर इंडिविजुअल अलग है, हर इंडिविजुअल का केस अलग है। जब आप बोलना स्टार्ट करते हो ना, जैसे आपने बोला कि साहब मैं पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहे थे? साहब मैथ्स पढ़ा रहा, मैथ्स में क्या पढ़ा रहे थे, कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं, कहाँ पढ़ाते थे, घर में या बाहर? बाहर पढ़ाते थे सर, अपना था या किसी के इंस्टीट्यूट के साथ था? सब इंस्टीट्यूट के साथ था, क्या नाम था इंस्टीट्यूट का? ये था। तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं, आपने 9th को क्यों पढ़ाया, इंजीनियरिंग क्यों नहीं पढ़ाया? ऐसे बड़ी तरह के क्वेश्चन वो ट्राई करता है ना चेक करने की आपकी ऑथेंटिसिटी, तो वो प्रैक्टिस करनी होती है उसकी। सर जैसे मैंने अप्रेंटिस जो है वो एक्सपीरियंस में डाल दिया था। ओके, कौशल, कौशल प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर एज अ अप्रेंटिस को हम वर्क एक्सपीरियंस में काउंट कर सकते हैं एज अ ट्रेनिंग सर? अप्रेंटिस वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, जी लेकिन अप्रेंटिस की अगर कहीं अलग से नहीं मेंशन किया, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस जो है उसका सर्टिफिकेट मांगता है ना वो आपसे। जी सर। और सर हाँ तो हम्म, कोविड के टाइम पे सर हमारी समर इंटर्नशिप नहीं हुई थी, तो सर उस वाले कॉलम में हम क्या फिल कर सकते हैं सर? देखो कोविड का तो नाम ही मत लेना आप लोग, कोई भी, जी तो कोविड का नाम लिए वो एक्सक्यूज लगता है। कोविड के बिल्कुल टाइम पे सर। बहुत दुनिया ने इंटर्नशिप की, बहुत दुनिया ने जॉब की। जी कोविड को डोंट यूज इट एज एक्सक्यूज। सो अगर आपने इंटर्नशिप नहीं की, कॉलेज में नहीं करवाई, तो इन ल्यू ऑफ दैट इंटर्नशिप की जगह कॉलेज ने कुछ और आपको बोला होगा,
ये तो सब्जेक्ट्स कर लो या प्रोजेक्ट कर लो, कुछ बोला उन्होंने होगा। सर एक इंडस्ट्री का एक फाइल दे दिया था कि वही कॉपी पेस्ट करके कॉलेज में सबमिट कर दो, उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब वो तो आप नहीं बोल सकते कॉपी पेस्ट, तो आप ये जी सर। बोलेंगे कि हमें ये बताया गया कि ऑनलाइन एक इंडस्ट्री का जो केस स्टडी है उसको केस स्टडी बनाओ और उसको केस स्टडी को सबमिट करो। ये बताने का दूसरा तरीका। सेम ही जी चीज सर। मैं बोल रहा हूँ, सेम ही चीज आप बोल रहे हैं। आपने कॉपी पेस्ट बोल दिया कि कॉलेज ने जी बोला सर। कॉपी पेस्ट करो और दे दो, पकड़े जाओगे आप भी और कॉलेज भी पकड़ा जाएगा। जी दूसरा मैं सर। क्या बोल रहा हूँ कि कॉलेज में हमें हमारे जो टीचर थे उन्होंने ऑनलाइन एक इंडस्ट्री के साथ एक इंडस्ट्री का डिटेल केस स्टडी बनाने को और उसका एनालिसिस करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट दी थी बनाने को, वो हमने बनाई थी सर। तो जनरल तरीका है उसका बोलने का। तो सर, तो सर हमने जहाँ से अप्रेंटिस की ट्रेनिंग की है, क्या हम उसी बेसिस पे सर बोल सकते हैं कि हमने समर इंटर्नशिप भी उसी फील्ड में की थी सर? बिल्कुल बोल सकते हैं। जी सर जैसे सर। मैंने एरिया ऑफ थैंक यू सर। इंटरेस्ट में अपना सब्जेक्ट डाल दिया था, जो इंस्ट्रूमेंटेशन का मैंने डिप्लोमा किया था ना, तो हाँ जी, इंस्ट्रूमेंटेशन के कोर्स से रिलेटेड। ठीक है। तो और सर जो उसने रेशियो में बुलाया है, मतलब जो शॉर्टलिस्ट किया है, तो उसमें बोलना है डिसेंडिंग ऑर्डर में बुलाया है, तो मतलब मैं जैसे 17 अगर सेट है तो उसमें कितने को बुलाया होगा इंस्ट्रूमेंट में? नहीं, इसके ऊपर डी मेरा कोई कमेंट नहीं है। आज का डिस्कशन उसके ऊपर नहीं, कितने बुलाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितने जाएंगे कितने नहीं जाएंगे, ये सारा नॉनसेंस है फ्रेंड्स। एक और चीज मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर पास होना है ना आप लोगों ने, अब वो भूल जाओ सीबीटी को। सीबीटी को भूल जाओ और अपना 100% इंटरव्यू के ऊपर लगा दो। अब बहुत सी जनता इसी में टाइम वेस्ट करती रहती है कि मेरा तो मार्क्स जो है वो कट ऑफ के पास है, मेरा होगा कि नहीं होगा। यार छोड़ दो वो चीज, इंटरव्यू दे दो 100% तैयारी करके। एक तो तुम वैसे सीबीटी में कम नंबर लेके आते हो, ऊपर से डिमोरलाइज होके इंटरव्यू भी खराब कर बैठते हो। सीबीटी में भी कम, इंटरव्यू में भी कम, पास कैसे होंगे? जिस कैंडिडेट को सीबीटी में कम नंबर आते हैं उसको तो पूरे मोटिवेट होके इंटरव्यू में अच्छे नंबर लेने चाहिए, लेकिन वो आएंगे तब जब आप मोटिवेट होके जाओगे। लेकिन आप तो डिमोटिवेट हो जाते हो कि सब सीबीटी में मेरे नंबर कम है, अब तो मैं पास होऊंगा नहीं। तो अगर पहले ही सोच लिए पास नहीं होंगे तो फिर तुम पास बिल्कुल नहीं हो सकते। इसलिए मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है और एडवाइस है आप सब लोगों को, और मान के चलना मेरे इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो ये आपको हेल्प करेगा। मेरी एडवाइस ये मानना आप कि अब सीबीटी को भूल जाओ। आपके कितने नंबर हैं कितने नहीं है उसको छोड़ दो। आगे जो है अब आगे जीडी जीटी इंटरव्यू, उस पर फोकस करो बस बस। इसके बाद मत पूछना कि कितने नंबर आएंगे, कितने बच्चे आएंगे, कितने पास होंगे, कितने मेडिकल में फेल होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जस्ट फोकस ऑन इंटरव्यू। सर एक और चीज पूछना था कि क्या हर्षित, डॉक्यूमेंट कैरी करने हर्षित, हैं, क्योंकि हर्षित है आप। मैं जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि इंटरव्यू जीडी जीडी में जैसे इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज कर सकते हैं क्या? यस, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों अलग से भी यूज कर सकते हैं, मिक्स भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप हिंदी में बोलना स्टार्ट किए फिर इंग्लिश में बोले, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट किए हिंदी में बोले, सब चलता है। बस और सर, रेलिवेंट बोलना। सर मुझे ये पूछना तो था अगर जैसे सर इंग्लिश में देती और हिंदी में और एक मिनट जरा हर्षित को पहले अपना काम क्वेश्चन खत्म करने दो। हर्षित ओके बोलो। जैसे मेरे फ्रेंड्स है, एक फ्रेंड है, उसने पूछा कि उसने इंस्ट्रूमेंट डिपार्टमेंट से अपना फॉर्म फिल किया था, लेकिन है उसका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या वो एलिजिबल होगा? ये आंसर गुरविंदर सर आपको करेंगे। इसका आइडिया मेरे को नहीं है कि वो एलिजिबल है या नहीं है, और उसको इंटरव्यू देने दिया जाएगा कि नहीं, वो आप एक बार गुरविंदर सर से पूछना। ओके सर, वो सर इसलिए एट पूछ द रहा था टाइम ऑफ कि इंटरव्यू या जीडी जीटी मैं सर प्रिपेयर ड्रेस करूं कोड क्या या ना रहना चाहिए करूं। सर? प्रिपेयर तो करना ही है ना, प्रिपेयर करना तो आपको चाहिए। आप देखो कभी भी अगर डाउट आए कि मेरे जी को इंटरव्यू दिया भी जा सकता है नहीं भी दिया जा सकता है, 50% प्रोबेबिलिटी है कि अगर मैं वहां गया तो मेरे को इंटरव्यू में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। तो अगर मैं आपकी जगह होऊंगा मैं तैयारी करके जाऊंगा, क्योंकि भाई, अगर मेरे को दे दिया उन्होंने चांस इंटरव्यू का, तैयारी करूंगा तभी तो पास होऊंगा। और जी अगर मैं सोचूं ना तैयारी नहीं करके जाऊंगा, तो चाहे चांस वो दे भी दे तब भी आप फेल ही होंगे वहां जाके, फायदा क्या फिर करके। तो सर तैयारी करके जाओ। सर ओके सर, आई थैंक यू टू सर। आस्क शैलेश यादव, शैलेश यादव। यस सर। सर एक डाउट था सर कि जैसे जो आईसीएल में जीडी जीटी एंड इंटरव्यू होता है, तो पहले जीडी होता है, फिर 50% लोग एलिमिनेट होते हैं, फिर जीटी होता है, फिर 50%, या जीडी जीटी एक साथ करके फिर एलिमिनेशन देता है? बिकॉज एचपीसीएल में सर जब मैं गया था तो ओनली जीटी था, जीटी के होने के 10 मिनट बाद उन्होंने 50% लोग को एलिमिनेट कर दिया, देन पीआई हाँ, किया। तो इसमें क्या जीडी जीटी दोनों पे है या जीडी जीटी मिक्स करके फिर एलिमिनेशन होगा फिर देखो पीआई होगा?
सुनिए, एचपीसीएल में ग्रुप टास्क होता है पहले, और उसमें 50% एलिमिनेट हो जाते हैं, फिर वो इंटरव्यू में जाते हैं, जैसा आपने देखा। या मैम या मैम आईयूसीएल में यस आप सर जीडी भी दोगे, आईयूसीएल में जीडी भी दोगे, आप जीटी भी दोगे, और आप इंटरव्यू भी दोगे। फिर ओके देने के ओके बाद ओके आप आ जाओगे, देने के बाद आप आ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा आप पास हुए कि फेल हुए। एचपीसीएल में पता चल जाता है उसी दिन, आईयूसीएल में नहीं पता चलेगा। फिर बाद में लेटर आएगा आपको, लेटर में लिखा होगा कि आप पास हुए, फेल हुए, क्या हुआ। आप अगर फेल हो गए तो उसमें लिखा होगा कि आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। जैसे मान लो आपके जीडी में 40% नंबर नहीं बने, जीडी दिया, जीटी भी दिया, इंटरव्यू भी दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपके जीडी में मार्क्स बने नहीं 40%, तो आपके लेटर में रिजेक्शन आ जाएगी, उसमें लिख दिया जाएगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। ये होता है। सर पैनल्स आर कॉमन और डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स आर जीटी जीडी जीटी एंड पीआई ग्रुप ग्रुप यस chemical सर engineers, 7-8 students will go for GD. In the same room, same members will conduct your GT also. In ओके the ओके another ओके room, सर in the another room, you will be going for interview. But GD, GT ओके will be same student, same panel member, same room. Sir, at the time of GT, what we wear? फिर से पूछिए। जी ऐसा मैं ये पूछ रहा हूँ सर, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जीडी जीटी के टाइम पर सर हम लोग क्या पहन के जा सकते हैं सर, देखिए, ड्रेस? इसके ऊपर ना एक वीडियो बना है, योरपीडिया के ऊपर ही है, जिसमें लिखा हो जी ड्रेस सर। कोड, ड्रेस कोड यस सर। योरपीडिया। बस इतना टाइप करना है यूट्यूब पे, ड्रेस कोड फॉर इंटरव्यू बाय योरपीडिया, तो एक डिटेल वीडियो आएगा, वो सुनना आपने। सर एरिया ऑफ ओके सर। इंटरेस्ट दो चार बातें बता दीजिए सर, जो कि फॉर्म फिल करने में हेल्प हो मैकेनिकल बैकग्राउंड वालों को। हाँ, बताइए, आपके क्वेश्चन है कोई? सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे दो चार पॉइंट बताइए सर, जिससे फॉर्म फिल करने में थोड़ा हेल्प मिले मैकेनिकल बैकग्राउंड वाले को। नहीं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैंने आपको बताया, प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। पर्सनल एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आपका कोई भी इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे लॉन्ग टूर पे जाना, जो माउंटेनियरिंग पे जाना, या जो हॉबी होती है वो इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट में वो भी डाला जा सकता है। प्रोफेशनल इंटरेस्ट में मैंने आपको बताया, आपकी जो भी ब्रांच है, जैसे अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हूं तो मेरा प्रोफेशनल इंटरेस्ट ऑटोमोबाइल में भी हो सकता है, सोलर एनर्जी में भी हो सकता है, मेरा वीडियो गेम्स में भी हो सकता है। तो आपका कोई भी इंटरेस्ट जो है उसको आप लिख सकते हैं, प्रोफेशनल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट। सर किसी की बैक लगी हुई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बैक क्यों आ गई तुम्हारे कोर सब्जेक्ट में? हाँ, बिल्कुल पूछ सकते हैं हम, अगर उनको और पता है तो वो पूछेंगे। और सर वो बैक निकली नहीं, वो ग्रेड दे के पास कर दिया, तो वो कहेंगे कि तुमने आगे उसको बैक दिया क्यों नहीं? नहीं, अब उनको कैसे पता लगेगा कि तुम्हारा बैक दिया नहीं आपने? सर वो मार्कशीट पे लिखा हुआ होता है ना, वो ग्रेड। मार्कशीट कई बार उनके पास सारी नहीं होती ना डिटेल में। अच्छा अच्छा अच्छा। सर डीवी सर डिप्लोमा प्लस बीटेक कंटिन्यू कर सकते हैं या बीटेक को हाइड करके, या उसमें प्रॉब्लम्स करेगा बाद में? मेरे से इंडिविजुअली डिस्कस करना। ओके ओके सर ओके। सर कैसे इंडिविजुअल डिस्कस कैसे करेंगे सर? आपके पास मेरा नंबर होगा ना, उस पर मेरे को कॉल कर सकते हैं आप, मैं भी जी शेयर सर, कर दूंगा। मैसेज किया था सर आपको मैं, हाँ ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन फ्रेंड्स फॉर टुडेज सेशन? हेलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीटी एंड जीडी सर? उसके लिए तो पूरा मेरे को सेशन लेना पड़ेगा, लेकिन बहुत से वीडियोस हैं योरपीडिया पे, अगर आप जाएंगे, देयर आर सो मेनी वीडियोस डिफरेंस बिटवीन जीडी एंड जीटी, एंड द वीडियोस विल कम टू टेल यू वेरी ब्रीफली the group task is you are to give the solution as a team. Group discussion, there is no team, every member is individually talking and giving his opinion. So group task is a group discussion mein you are not a single group, everybody is individual. सर एक डाउट। सर आई हैव आल्सो वन डाउट। go ahead. सर मेरा एक डाउट था सर। हेलो। हाँ गुल्लू, go ahead. हाँ सर, मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ सर, मेरा 12th और डिप्लोमा में सर 3 साल का गैप है, क्योंकि सर मुझे बोन टीवी हो गया था। तो सर इंटरव्यू में सर बताना सही रहेगा या फिर नहीं बताऊं? देखिए, आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट तो हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि सर ये मेरे को जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट मिला था, ये एक इस पर्टिकुलर रीजन से मिला था, तो उसी रीजन में उसी टाइम पे मेरे को ये गैप लेना पड़ गया था।
तो सर बताना मतलब सही रहेगा सर, कोई दिक्कत हाँ तो नहीं होगी सर को? क्योंकि देखो उनको पता ही है आप पीडब्ल्यूडी हो, जी वो तो पता है उनको। मैं बोल रहा हूँ उसको लिंक कर दो उस गैप के साथ, बात खत्म। ओके ओके सर उनको लिंक करो, जी वही बताओ जो ऑलरेडी उनको पता है। आप पीडब्ल्यूडी हैं, जी जिस रीजन से पीडब्ल्यूडी हैं, अगर वो लिंक किया जा सकता है तो कर दो। सर जो ऐसा जो कहा जाता है डेट जीडीजीटी में खुद का नाम नहीं लेना होता है सर, तो क्या हाँ इंट्रोडक्शन जब जीडीजीटी करेंगे खुद का नाम नहीं लेना जीडीजीटी होता? में जीडीजीटी में इंट्रोडक्शन करते भी नहीं है अपनी। आप इंट्रोडक्शन नहीं करते हैं कि फ्रेंड्स आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द टास्क, द टॉपिक गिवन फॉर द डिस्कशन टुडे इज दिस, तो नाम लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, आपकी ओल्ड वीडियो सर यूट्यूब में अवेलेबल, वो होती देखा है तो उसमें क्योंकि जीडीजीटी जो है वो एक जगह नहीं होता ना, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है, तो मेरी जनरल वीडियोस होती हैं। आईयूसीएल में अगर वो बोल रहा है नाम नहीं लेना, और वहां पे सुन लेना क्या बोल रहा है। अगर बोलता है नाम नहीं लेना तो नाम वाला लाइन हटा दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज विजेंद्र सिंह, ये लाइन हटा दो। अगली लाइन क्या है, फ्रेंड्स आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन, यहां से स्टार्ट कर दो बस। सर जैसे डिप्लोमा में सर डिप्लोमा में प्रोजेक्ट सर नहीं किया है, तो प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में क्या भरेंगे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में? मैं वही बता रहा था कि अगर प्रोजेक्ट आपने नहीं किया है तो सोचिए कि अपने कॉलेज में क्या कोई छोटा मोटा माइक्रो प्रोजेक्ट, एडिशनल सब टॉपिक, कोई इंडस्ट्री विजिट, इंडस्ट्री के सर साथ कुछ उसमें एक 5-7 दिन का इंडस्ट्रियल काम। एक सर्टिफिकेट के लिए सर, हाँ वो इलेक्ट्रॉनिक्स का टॉपिक है, बट मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो वो अगर उसको डाल दिया तो उससे क्वेश्चन पूछेंगे जो मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रिकल का प्रोजेक्ट जनरेट कर लो, अगर कर सकते हो, कॉन्फिडेंट हो। उसमें एक वर्क एक्सपीरियंस का डाल सकते हैं क्या अपना? वर्क एक्सपीरियंस का कहाँ डालना चाहते हो, प्रोजेक्ट में? वही बात, हाँ प्रोजेक्ट में बायोडाटा वाले में। तो वर्क एक्सपीरियंस में क्या डालोगे? क्योंकि सर वो वही इशू था हमारा भी, कोविड के समय वो ऐसे ही सबमिट हो गया था, मैं मार्क्स आंसर वगैरह। कर चुका हूं कि अगर वर्क आपने किया है तो वर्क के अंदर प्रोजेक्ट भी किए होंगे बहुत से। वर्क के अंदर जो आपने काम किया होगा अगर, तो उसमें छोटे मोटे प्रोजेक्ट भी किए होंगे। आपने नहीं किए होंगे, बगल वाले कुलीग ने किए होंगे। वहीं से एक उठाओ और प्रोजेक्ट में शो कर दो। सर सर उनको इसमें बताएंगे ही नहीं, अगर ये बोल सकते हैं क्या सर कि अब विजिट के दौरान ये सब चीजें की, लेकिन वो सारे भी तो। बहाने लगते हैं, सारे बहाने लगते हैं, एक्सक्यूज। मैं ऐसे एम्प्लॉय को कभी हायर नहीं करूंगा जो कोविड कोविड करेगा। साहब कोविड के टाइम पे हम कुछ नहीं कर पाए, बाकी दुनिया तो सारा करती रही, तुम ही नहीं कर पाए, क्यों लेगा तुम्हें? अगर तुमने ये सर बोल दिया कि कोविड के टाइम पे सर मैं ये नहीं कर पाया बिकॉज कोविड चल रहा था, तो मैं तुम्हें कभी नहीं लूंगा, बिलीव मी। इसलिए कि कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, काम सारा चलता रहा, नहीं और सर, ये बोलेंगे ऑयल कंपनी ने ज्यादा प्रॉफिट जनरेट किया। सर ये सर बात बीएससी का इंटरव्यू देने गया था सर मैं, तो उसमें कोविड के बारे में जिक्र कर दिया था सर, तो वो लोग मौज ले लिए थे मेरा। मैं वही बोल रहा हूँ, कोविड कोविड मत करना, अदरवाइज वो एक्सक्यूज लगता है। सर कितना सर मेरा भी एक डाउट है। कितना टाइम का I हुआ था? don't have the application form. What should I do? यू डू नॉट हैव एप्लीकेशन फॉर्म मीन्स? The form when we apply for CBT. No, I could not understand your question. I mean, you are applying for now IUCL, but you don't have application form. Yes, sir. At the time of application, we need to download the application form, you know. हाँ, तो फ्रेंड्स I don't. कोई इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है? सो आई थिंक राइट पर्सन इज गुरिंदर सर, बट लेट मी आस्क अदर कैंडिडेट्स। सो आपको जो एप्लीकेशन आप सीबीटी के टाइम पे डाउनलोड करना है, अगर वो ना हो तो क्या कर रहे हो तुम लोग? एनीबडी? Sir, in my diploma curriculum, we don't have training, sir. What will I do? Just wait, let me answer the first question of Vivek. Vivek is trying to download the application of CBT. Are you also trying to download application of CBT? यस सर, सेम हमारा तो पहले से डाउनलोड है। पहले से डाउनलोडेड है, तो जिनकी नहीं है वो क्या कर रहे हैं? सेम इशू उसको IOCL को मेल करना चाहिए था। नहीं, तो I have Vivek bring this to Gurinder sir's notice and he will give you the solution. I think that what happened last time also. So there is a way you can get that application again. Tell Gurinder sir. Okay, sir. Yeah, next question. हेलो सर। Sir, in my diploma curriculum, we don't have training, sir. What should I do? Sir, I have So one doubt, if you sir. don't have training, friends, in place of training, Hmm. your industrial visit,
one Your industrial visit is there, sir. so that is what I'm saying. Something will be there. Mention those things. Sir, and also I did one month Honda showroom training, sir. 1 month I did, sir. That is That is also training only. That is industrial training only. What else is okay, that? okay, sir. Sir, and also my diploma I did in 2018. Recently I joined in HL, sir, as a diploma technician, tenure based. Hello. How can I fill that? How Gap. to manage that gap, sir? 2018 to 2025. See, if you are in job right now, Yes, your sir. previous gap is not a problem. Okay, sir. But Sir, still you have to for answer it. tenure based also NOC required, sir. I don't think tenure based NOC is required, but you confirm it with Gurinder sir once. Okay, sir. I don't think it is required. सर हम 2022 में पास आउट है सर। हेलो सर सर हम 2022 में पास आउट हैं और सर हमने वो प्रोजेक्ट में सर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर बनाया था और सर हम मतलब 3 साल का गैप है तो सर प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं सर? देखो प्रोजेक्ट तो डाल ही सकते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर लेकिन वहाँ मेंशन है समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कॉलेज प्रोजेक्ट मेंशन ही नहीं है वहाँ। नहीं सर हमने समर ट्रेनिंग में ही बनाया था आप सर। मेरे को बताओ आपने कॉलेज में बनाया कि इंडस्ट्री में बनाया, ये कैसे पता लगेगा उनको? नहीं सर हमने समर सर ट्रेनिंग वो में बाद बनाया में था सर। सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट और ये रजिस्ट्रेशन नंबर और क्या कहते हैं वेरिफिकेशन भी होता है। अगर देखो मेरे को स्ट्रांगली लगता है, चेक कर लेना, मेरे को स्ट्रांगली लगता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का वेरिफिकेशन नंबर कुछ नहीं होता। आप लेकिन चेक कर लेने एक बार सीरत मैम के साथ। पर मेरे को नहीं लगता कि अगर कोई ट्रेनिंग करके आया किसी इंडस्ट्री से तो उसका कोई नंबर होता है, नंबर कुछ नहीं होता, सर्टिफिकेट सर तो मेरा 15 दिन का ट्रेनिंग जैसे समर के कोरोना में थे तो समर में नहीं हुआ था सर, तो आफ्टर जब कंप्लीट हो गया डिप्लोमा तो 15 दिन के लिए हुआ था, तो उसमें हमको सर्टिफाइड नंबर दिया गया है। तो सर्टिफिकेट मिलता है आपको आपको दिया गया होगा, लेकिन आईयूसी थोड़ी मांगेगा नंबर, आपको दिया गया होगा। हाँ यस सर। तो वो जब हम कॉलेज में बात की ना तो वो बोले कि बाद में वो वेरीफाई भी करता है। अरे यार कॉलेज वाले को क्या पता यूसीएल क्या करता है? जो मैं हर साल 500 बच्चों को ट्रेनिंग देता हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, कॉलेज वाले की बात मान रहे हो जिसको पता ही नहीं है। कॉलेज वाले को क्या पता यूसीएल क्या मांगेगा? सोच के देखो, डिप्लोमा कॉलेज में। तो सर हम कॉलेज में जो प्रोजेक्ट किए थे वो उसके बारे में हम लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट किया तो उसको भी लिखो, कोई नंबर नहीं होता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का, सर्टिफिकेट होता है। कई बार सर्टिफिकेट मांग लेगा आपसे, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पे मत लिखना, लेकिन इंटरव्यू में बोल देना, वो होता है। सर सर्टिफिकेट है मेरे पास समर ट्रेनिंग का, तो वो मांग सकते हैं कि नहीं सर आईयूसीएल वाले? सर्टिफिकेट वो देखो, जो उन्होंने बोला है आपने जो किया उसका सर्टिफिकेट आपसे मांगेगा वो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे जॉब एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो अब आपके ऊपर है, एम्प्लॉयमेंट फॉर्म पे अगर आप लिख देते हो तो ऐसा नहीं कि आपको इंटरव्यू में देने नहीं दिया जाएगा बिना सर्टिफिकेट के। कुछ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है जो होने चाहिए, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, 10th का या ऐसे डिग्री सर्टिफिकेट है, वो तो चाहिए। लेकिन एक्सपीरियंस प्राइवेट सेक्टर में मैंने जॉब की है, 3 महीने 6 महीने जॉब की है, उसका सर्टिफिकेट कोई नहीं मांगता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी नहीं मांगते। और अगर नहीं भी है, हाँ सर आई डन माय बीटेक आल्सो, इज एनी प्रॉब्लम? नहीं है तो वो क्या देगा सर? सर आई डन ए बीटेक आल्सो सर, इज एनी प्रॉब्लम मेंशन इन बायोडाटा फॉर्म? you are not eligible if you are BTech for this job as per my knowledge. Okay sir. So don't reveal it. Okay sir. सर जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसका फॉर्मेट जो इंग्लिश में होगा या फिर जो ओरिजिनल है हिंदी में वही चलेगा? ये गुरिंदर सर आंसर करेंगे, डॉक्यूमेंट्स का सीरत मैम वगैरह आंसर करेंगे इसका। पर ये आपका जो ग्रुप बना है ना, सुनो मेरी बात, आप लोगों का जो ग्रुप बना है यूरोपीडिया पे व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप डिस्कस एक दूसरे के साथ कर सकते हैं ऐसी चीजें। और अगर आपको नहीं आंसर लगता है तो गुरविंदर सर से आप डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, कैसे कैसे, वो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। मेरे से आप जीडी जीटी इंटरव्यू उसका सेशन है ये। सर अगर फॉर्म में हमने है ना समर ट्रेनिंग लिख दी और हम समर ट्रेनिंग के लिए गए नहीं, उसके बारे में पढ़ लिया, सब चीज कर लिया, और उसका सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? सर्टिफिकेट तो है नहीं हमारे पास। मैं वही बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट नहीं पूछते हैं वो। सर सर्टिफिकेट तो मेरा भी नहीं है, क्योंकि मैंने कर रखा है, वो सब स्टेशन से किया था, मतलब गवर्नमेंट से। वो जॉब का भी सर्टिफिकेट नहीं पूछते हैं, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। अगर मान लो आपने बोल दी जॉब की है तो आपको इंटरव्यू देने दिया जाएगा।
एज पर माई जी नॉलेज जी वो रोकेगा नहीं तुम्हें। जैसे मान लो अगर मांग ले तो क्या कहा जाएगा कि है सर ऐसे तो यहाँ पर गैप है नहीं। गैप नहीं फिल करने के लिए ऐसे तो कोई भी बोल देगा सर हम 2 साल ये पकड़े जाओगे, कहीं भी। पकड़े जाओ, पकड़े जाओगे भाई साहब वहां अंदर 2 मिनट के अंदर। ऐसे मत बोल देना, ब्लफ मत करना। सर अगर तुम उन्होंने 4 पूछ क्वेश्चन लिया। के आंसर नहीं दे पाओगे अगर झूठ बोल के देख लेना मेरे साथ किसी दिन। वो तो बहुत एक्सपीरियंस होता है, तुम योरपीडिया के टीम मेंबर के साथ ही करके देख लेना। झूठ में बोल देना मैंने जॉब किया है, पकड़े जाओगे। वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इतना जरूर कर सकते हो, 4 महीने का काम किया उसको 6 महीने बता दिया, पर ये नहीं कि किए ही कुछ नहीं और बोल दिया कि साहब मैं तो उस इंडस्ट्री में जॉब कर रहा था। पकड़े जाते हैं, और अगर पकड़े गए तो एलिमिनेट कर देगा वो, वहीं से निकाल देगा बाहर। तो ब्लफ नहीं मारना। सर समर एक ट्रेनिंग में तरीका, ऐसे हम गए नहीं, तो अगर उन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया कि वहाँ क्या किया, मतलब तो क्या जवाब देना होता है? उसकी तैयारी इतनी अच्छी कर लें कि आप जवाब दे पाओ। कुछ चीजों के जवाब तो देने पड़ते हैं ना आपको, तो तैयारी अच्छी कर ली जाए, यही तो हम बोलते हैं। तो हम बोलते प्रेपरेशन करो, उसका मतलब यही होता है कि साहब मैंने ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की, मेरे से 20-50 क्वेश्चन पूछ लो आप। ये क्यों तैयारी क्यों करवाते हैं, इतना प्रैक्टिस क्यों करना होता है, इसीलिए तो होता है। जैसे मेंटर्स हैं, सपोज योर पीडीए के मेंटर हैं, वो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपकी रिहर्सल और तैयारी तो करवा रहे हैं। वो आपसे आड़े टेढ़े क्वेश्चन पूछेंगे जिससे तुम्हारा प्रिपरेशन होता है उस चीज का। ये सर पढ़ तो लेंगे वो, पर अगर प्रैक्टिकल जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस पूछा तो वो कैसे बताएंगे हम? जो चीज नहीं आती उसको बड़े ग्रेशियसली नो सर कर देते हैं। नो बोलने से नंबर ना तो मिलते हैं ना कटते हैं। झूठ बोलने से आपके नंबर कटते हैं, और ब्लफ मारने से आप एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर आंसर सही किया तो नंबर मिलेंगे, आंसर नहीं किया नंबर नहीं कटेंगे ना मिलेंगे। आंसर गलत कर दिया तो शायद आपके नंबर कम भी हो जाएं, ब्लफ कर दिए तो आप एलिमिनेट हो जाएंगे, ये होता है। सर ड्यूरेशन लिखी नहीं है उसमें, कितनी ड्यूरेशन के समर ट्रेनिंग करी थी हमने। तो अगर वो पूछें कि कितने टाइम तुमने विजिट करा तो क्या बताएं सर? जो किया उतना बता दो। और नहीं, हमने करा ही नहीं है सर, हमने लिख दिया उसमें फॉर्म में। तो सोच के जाओ जो बताना है, जितने की तैयारी है। अगर अच्छा तुम्हें लगता सर। है तुम 2 महीने की तैयारी करके जा रहे हो, 2 महीने बता दो। महीनों का फर्क नहीं होता। अगर तुम्हें लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जो तुमने की है वो तुमने 1 मंथ की है, 3 वीक की है, जो जस्टिफाई कर सको 3 वीक बोल दो। 3 वीक बोल क्वेश्चन दूं? एराइज हो सकता है सर समर ट्रेनिंग के दौरान? हाँ, क्या क्या क्वेश्चन एराइज हो सकता है समर ट्रेनिंग के दौरान? बहुत बहुत क्वेश्चन होता है, डिपेंड करता है कहाँ ट्रेनिंग की तुमने। यस जैसे मेरा फील्ड था कैड कैम, तो सीएनसी मशीनिंग, तो उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन पूछ लेगा। ऑब्वियसली सीएनसी तो पूछेगा ही ऑब्वियसली क्वेश्चन, फिर कैड सर तो कैम सीएनसी। प्रोग्रामिंग नहीं ना कराने लगेगा सर बैठा के? जीएनएम कोड तो आते होंगे ना। यस सर यस। न्यूमेरिकल कंट्रोल और जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल में डिफरेंस क्या है, एनसी और सीएनसी में क्या डिफरेंस है, कब आया था एनसी पहली बार, इनमें से जेनरिक मशीन कौन सी होती है, मास प्रोडक्शन यानी के लिए कौन सा टूल। बेसिक फाउंडेशन क्वेश्चन पूछा जा सकता बिल्कुल वही पूछता है वो आपसे। सर मैंने क्या था ना कि डिप्लोमा में सर मेरा प्रोजेक्ट नहीं था, तो मैंने प्रोजेक्ट में नॉट एप्लीकेबल कर दिया, लेकिन उसके बाद जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट था तो मेरा एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बेसिस पे जो जो मेरे को वहाँ ठीक लगते थे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो मैंने डाल दिया। हाँ ठीक है। देखो ऑनेस्टली एक बात समझो फ्रेंड्स, आप सारे लोग मेरी एक बात समझो। बेस्ट तो ये होता है कि आप वहां पे कुछ दिखाओ कि आपने इंजीनियरिंग ढंग से की है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपकी ट्रेनिंग है, प्रोजेक्ट है कि नहीं है। उनको कोई लेना देना नहीं है आपके कोविड की प्रॉब्लम से, कॉलेज की प्रॉब्लम से। अगर आप अपने कॉलेज की इंसल्ट भी कर रहे हो तो वो अपना ही नुकसान कर रहे हो तुम। क्यों, उनको पता लग जाएगा ये बेकार कॉलेज से निकल के आया है, ये तो इंडस्ट्री भी नहीं गया, तो कभी गए नहीं कॉलेज, या तो कभी इंडस्ट्री में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग नहीं की इसने। उन्होंने तो एलिमिनेट करना है आपको, कर देगा। इसलिए उनको चांस मत दो एलिमिनेट करने का। ऐसे आंसर करो जिससे लगे कि नहीं साहब आप गए हो, आपने कुछ किया है। पर ब्लफ भी मत मारो, ब्लफ भी ना लगे, चीजें भी हो जाएं आपकी। यही तो तैयारी होती है, यही तो आपको सारा मैनेज करना है ढंग से। सर कि ब्लफ भी ऑनलाइन किए ऐसा बोल बोल सकते हैं? ऑनलाइन तो होता ही है, करते ही है लोग, ऑनलाइन अच्छी चीज है। ऑनलाइन इंटर्नशिप प्रोजेक्ट किए हैं तो फिर बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते हैं। कोविड के उसमें टाइम भी पे सर होना पूछ चाहिए, सकते लेकिन हैं? लेकिन वो कोविड का ड्यूरेशन होता हो। यस सर, कोविड का ही ड्यूरेशन। हम्म। फिर वो पूछेगा सर कब कब किए थे, कहाँ से किए थे? हाँ तो पूछेगा ही। ऑनलाइन किए थे आप बोलोगे 24 में किए थे, तो कोविड तो नहीं था 24 में।
23 में किया, कोविड नहीं था 23 में, 22 में कोविड नहीं था, 20 और 21 में कोविड था बस। सर डिप्लोमा फिफ्थ सेमेस्टर में मैंने समर ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन विंड पावर प्लांट का प्रोजेक्ट बना के कॉलेज में दिया था, तो वो लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो। और नीचे सर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जिसमें अदर डिटेल भी लिखा है, उसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट और अदर डिटेल्स में मैंने अप्रेंटिस किया पावर ग्रिड से, वो लिख सकता हूँ? बिल्कुल, ये जो मैं बोल रहा था किसी कैंडिडेट को कि अदर कहीं डिटेल्स में दिया होगा उन्होंने आपको सेक्शन, और वो ये भी बोलता है कि और अगर आपने सबमिट करना है तो एक पेज अटैच कर दो। Okay, so Lalita, you're there. Would you like to say something to candidates, students? Yes, sir, I am here. Yeah. So would you like to say something? There may be many chemical engineers here. Yes, sir. Hi, guys. Hi, how are you? Okay. Well, ma'am. Yeah, good evening. So I think everybody will be nervous about the interviews and all those things, and I'm hearing that you're asking many questions to Vijendra sir and all those things. So yeah, I can understand from your position कि इस time तो ऐसे ही लगेगा obviously. But don't take tension. Like Vijendra sir said, don't think about your marks, what you got in CBT. Just forget all those things. Medical में कौन होगा, कौन नहीं होगा, ये सब तो secondary चीज है. अभी हमारे आगे एक दो माइलस्टोन्स है, एक तो है जीडीजीटी एंड एक तो है तुम्हारा इंटरव्यू। तो इसमें कैसे परफॉर्म करना है, कैसे हमको इसमें आगे बढ़ाना है, ओनली थिंक अबाउट दैट थिंग, देन ओनली वी कैन, हमको चाहिए दैट वी विल गेट एक्चुअली। एंड कमिंग टू द इंटरव्यू एंड जीडीजीटी पार्ट, इंटरव्यू में ना आधा टेक्निकल होगा और आधा HR क्वेश्चंस होगा। जनरली इंटरव्यू में ऐसे होती है कि interviewers will be sitting there and they'll have some piece of questions in some chits. They'll have like chits and they'll have some questions in like along with them, and they'll open and they'll see in that chits and they'll generally ask. So technical questions may generally they generally cover on these topics like normal processes like DHT or CDU. What actually the process जो हम पढ़ते हैं ना कि इसके बारे में, like the process technology of the entire plant, starting if you want to refine the crude oil or petrol, from that if you want to bring the petrol, diesel and all those things. So जैसे तुमको process वो starting से ending तक petroleum chemical process technology में जो process होती है, we should read, like we should go through with all those things. And next, emergency handling procedures, safety, environment related, like these all questions they are going to ask technical में. और HR में they are going to ask कि if I place you in any other location, is it okay? Like HR based questions also will be there. Hardly it will be, the interview might last from 15 minutes to 30 minutes. Generally it goes on like that for IOCL, this post. And GDGT is like it is another again the second case. So the key thing in this thing is that just going through the basics, whatever the basics that were taught in our college, if we go through the basics and if we remember the basics, that information itself is enough for the interview. Nothing more, nothing less. They not ask you high level questions and all those things. Whatever the questions, whatever the knowledge they want to test for you, they have tested it in your CBT test only. So वो तो हो गया. अभी interview में they want to test your basics and they want to test your confidence levels and they want to test your managerial skills. Only these kind of things they are going to see in the interview. So in that point of view, we should prepare the interview. तो CBT test में जो technical answers लिखते हैं, it is interview उससे थोड़ा सा अलग है. इसमें you'll answer ना, so they'll see your body language, they'll see along with your answer they're going to see n number of things. तो उसके लिए grooming करने के लिए URPD is going to help you a lot for that. Understood ना? That is the main purpose actually for guiding and all those things की यहाँ जितना गलती करना है आप कर लेना ताकि इंटरव्यू में हम कम करें. So any student with chemical background, if he has any question, they can ask from Lalita ma'am. Yes. मैम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. मैम मेरा जो है केमिकल इंजीनियरिंग में MIM में बैक लगा हुआ है, 13 मार्क्स है.
देन Okay. मार्क्सशीट में 13 ही लिखा हुआ है और वो ग्रेस मार्क्स देख के मुझे है ना पास कर दिया, प्रमोट कर दिया गया था। बाकी मेरे सब में ओवरऑल अच्छे हैं। तो वो अगर मार्कशीट देखेंगे देन पूछेंगे मुझसे मतलब व्हाई आर यू वीक इन दिस सब्जेक्ट, देन हाउ आई कैन हैंडल इट। Yeah, I understood. So there is a chance, मतलब chance है कि they will ask. Generally उनके पास मार्कशीट देख के इतना देख के ये सब कुछ मतलब चेक करके उसके बाद आपसे पूछना, इतना टाइम जनरली इंटरव्यूअर्स के पास नहीं होती है। जनरली इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे होता है मैं बताती हूँ। जिस लोकेशन में आपका इंटरव्यू होती है, so there the employees, the people who are working in IOCL at higher positions, they are only going to take your interview. So they are going to fly to that place one day before or exactly on that day to take the interview. So while they are taking the interview, they are going to they already have some pre-prepared questions, first thing, and second thing, they're going to have your resume, like the CV. So marksheet जितना there will be thick folder of yours and उसमें marksheet रहेगा. So देख के वो question पूछना, it's like a very highly unlikely chance of asking, but we cannot ignore that. If they ask also, when we both will have a one-to-one interaction, I'll give you a good answer कि how you should face that question. कैसे उस क्वेश्चन को तुम फेस कर सकते हो ताकि we should not be looking good or bad also. Tricky questions तो ऐसे ही होता है ना कि हम जवाब नहीं दे सकते लेकिन अच्छा जवाब देना चाहिए ताकि आगे बढ़ सके इंटरव्यू। तो वो हम दोनों आपस में डिस्कस करते हैं। ओके ओके मैम, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसे तो बहुत सारे लोगों का, बट थिंक वन थिंग, जस्ट लाइक दैट हैज हैपेंड टू यू, और भी बहुत सारे लोग हो सकता है कि ऐसे ऐसे हुआ उनको, लेकिन फिर भी they are getting selected. I only know some couple of persons who are my company who got selected like that. It's just because of their interview skills that they have performed at that time. So don't worry about that. Excuse me, ma'am. I have one doubt. Yeah. Ask. There is any Sumit, Yeah. I'm sorry, but I'm unable to hear. Hello? Sumit, you can write your question if you can't speak. Yeah. मैम अगर वो ये पूछें कि आपने मतलब 3 साल में है ना IUCL में अभी तक अप्लाई करा था नहीं करा था? मैंने करा था, अप्रेंटिस के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन मैंने उसमें नो लिख दिया कि मैंने इससे पहले कोई भी टेस्ट वगैरह CBT वगैरह कुछ नहीं दिया। CBT तो फर्स्ट टाइम हुआ है, इससे पहले मैंने IUCL में रिफाइंड अप्रेंटिस के लिए एक एग्जाम दिया था जिसमें मेरा नहीं हुआ। देन उसके बाद मेरिट बेस आ गया था, देन अब CBT में हो गया। अगर वो मुझसे पूछते हैं कि आपने दूसरे फील्ड में अप्लाई क्यों नहीं करा, तो देन हाउ कैन आई हैंडल? नहीं, you can you repeat the question? You have applied for the apprentice in IOCL. जी, और उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था कि आपने IUCL में पहले अप्लाई करा है या नहीं करा, तो मैंने उसमें नो लिख दिया कि मैंने कभी अप्लाई नहीं करा। See, you have applied for apprentice now. अगर if you have applied for this post, this E0E01 post, whatever the diploma candidates post, for that if you would have applied, then you should write S. Apprentice के लिए it doesn't consider that in this column, so it is okay if you write no also. That is not a problem. ओके, अगर ये क्वेश्चन आता है कि आपने इस 3 साल में कहाँ मतलब और अप्लाई करा IUCL के अलावा और क्यों नहीं करा, अगर नहीं भी करा तो अगर आपने नहीं किया क्या 3 साल में कहीं और? नहीं, मैंने इसी में पर्टिकुलरली एक अप्रेंटिस दिया था। इट इज माय फर्स्ट CBT एंड आई क्वालिफाइड। ओके, तो 3 साल में आपने और ऑर्गेनाइजेशन को अप्लाई नहीं किया? नहीं, मैं फील्ड चेंज कर लिया था मैंने मैडम, नॉन टेक में चला गया था। अच्छा, नॉन टेक में चला गया। you can happily answer that thing that initially I wanted to see, you will give the answer in a very professional way. So जब I passed out from the college, I actually want to experience the variety of the fields that are around us. So I have went into non-tech and I have gained knowledge in that thing for 3 years of experience. But still, as my core branch is chemical engineering, and I am very much passionate about it. I wanted to come back to this field, and now by this opportunity, I'll have both the knowledges, non-tech and tech, which I can apply in my own profession.
which will actually make you a little bit of ahead compared to others. You can use that as a plus point to you ki I have this knowledge also. If while I'm working in the field or in office also, if at all, if any problem comes, I can use this kind of knowledge also there to apply and solve the problem. Like that, you can actually use it to your own good and say it. Understood? Okay, I'll get. Okay, so friends, yeah. So I think Lalita, we need to conclude the session now. Yes, sir. So friends, more or less we have discussed all the things. बाकी one-to-one session में you have many queries that we can answer in one-to-one session. आप जो भी questions होंगे उनको लिख लेना. Last, I would like to tell you is के practice a lot so that you become more confident, because most of the things are related to your practice only. If you practice more, if mentors ask you questions, then you'll be in better position to answer these and practice it well. So with that, we conclude this entire session. It was a wonderful session. I thank all the mentors, including Lalita ma'am here. And I thank all of you who joined the session for discussion. Look forward to mentor all of you. Thank you and good night.